The unseen reel decoding the dark margins of modern youth. Professional investigative docudrama psychological script format. Hindi, Punjabi, and English mixed for authentic realism and emotional resonance. Raw, psychological, empathetically candid, analytical, and unfiltered. The upper floor and the whispering shadow. Scene open with a dimly lit room on a upper floor. The faint sound of late night traffic blend with the low volume instrumental music. A cigarette is lit in the dark. The amber glow red, illuminating a young woman face. Let's call her a protagonist नरेटर। लोग कहते हैं कि सच्चाई वो होती है जो सामने दिखती है, पर असली सच तो वो है जो बंद कमरों के अंदर, अपर फ्लोर्स पर या रात के सन्नाटे में सिगरेट और अल्कोहल के स्मोक के पीछे छुपाया जाता है। स्लीपिंग डिस्टर्बेंसेस, जब दिमाग इतना थक जाए कि नींद ना आए और बस अकेलापन महसूस करें। Scene direction cut to quick, fragmented visual flashes. A shadow moving across a corridor, a glowing mobile screen displaying late night chat notification, internal monologue running wild with unexpressed urge, intrusive thoughts, a deep, exhausting sense of alienation. Narrator. दिमाग ज़्यादा नहीं चलता, नहीं यार सब पता होता है कौन क्या कर रहा है, घर के अंदर क्या चल रहा है। क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, दंगल टीवी पर जो स्टोरीज दिखाते हैं वो फिक्शनल नहीं है, वो किसी ना किसी के घर के रियलिटीज़ हैं। बस फ़र्क ये है कि हम उन्हें छुपा लेते हैं। पैसे नहीं है, डर है, और सबसे बड़ा सवाल है कि किसके पास जाएं, किस पे भरोसा करें। The architecture of taboo, dreams, desire, and the subconscious. The lighting turn surreal, slightly feverish, evoke a psychological dreamscape. Let's talk about the layer nobody wants to touch. Part 1, intrusive thoughts, unexpected desire, the psychological turbulence. Part 2, the spiritual and physical colliding, like visiting a sacred place like a Kamakhya Devi seeking peace, but the subconscious mind getting entangled in bizarre dream, fear of surgery, and related anxiety. Internal dialogue script note, the psychological weight. How does a young mind process intense biological urge when caught between traditional family boundaries and modern exposure? TV, media, and mirror. Romantic serial dramatic twist, the media portrayals offer a temporary escape, but they also plant dialogue and characters in the mind that become companion in the loneliness. जब आप अपने पेरेंट्स के पास जाते हो अपना हार्ट ब्रेक या इंटरनल स्ट्रगल लेकर, तो क्या होता है, यकीन नहीं करते, वो आपको गलत समझते हैं। फिर आप अकेले पड़ जाते हो, और जब फैमिली के अंदर ही बाउंड्रीज ब्लर होने लगती हैं, जैसे अनवांटेड सेक्सुअल थॉट्स या सिबलिंग डायनामिक्स के बारे में इंट्रूसिव वेव्स आती हैं, इंसान अंदर से टूटने लगता है। उसे लगता है कि वो पागल हो रहा है, जबकि उसे बस एक सेफ प्रोफेशनल गाइडेंस की ज़रूरत होती है। The insecurity of expression, money, permission, and the body. Scene shift to an open courtyard or street view where local youth are dancing, shooting reel, and making content. आसपास देखिए लोग डांस कर रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, और योगा और फिटनेस शूट्स कर रहे हैं, और आपके पास पैशन है, अर्ज है, पर क्या नहीं है, पैसा नहीं है, मनी कॉन्सेंट्रेट्स, ना ही फैमिली की परमिशन है, और कहीं ना कहीं बॉडी इमेज या सेल्फ डाउट की कॉन्सेंट्रेट्स हैं। आप खड़े होकर बस देख सकते हैं, और जब आप ये देखते हैं तो अंदर एक आग लगती है, पैशन की भी और फ्रस्ट्रेशन की भी। ये इनइक्वालिटी सिर्फ पैसे की नहीं है, एक्सप्रेशन की है। द साइकोलॉजिस्ट ऑफिस एंड द फियर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. अ सीक A sleek professional clinic interior just tapsost with a nervous student sitting outside clutching a notebook. अब आते हैं सबसे सेंसिटिव मुद्दे पर। पिंड और स्मॉल टाउन के स्टूडेंट जब बड़े शहरों में आते हैं या काउंसलिंग के लिए सोचते हैं, तो उनके अंदर एक अनजाना डर होता है, क्या वो साइकोलॉजिस्ट हमारा फ़ायदा तो नहीं उठाएगा, क्या सिटी स्टूडेंट्स की तरह हमारी वनरेलेबिलिटी को जज किया जाएगा। ये सोशल मीडिया पर मेंटल हेल्थ की बातें तो बड़ी बड़ी होती हैं, पर ग्राउंड रियलिटी ये है कि काउंसलिंग सर्विसेज बहुत कॉस्टली हैं, और उस तक पहुंचना हर टीनेजर के बस की बात नहीं है। जैसे पीरियड्स के दौरान कपड़े यूज़ करने की पुरानी मजबूरी को बदलकर सैनिटरी पैड्स का सलूशन लाया गया,
वैसे ही आज की जनरेशन की इन साइकोलॉजिकल, इमोशनल और सेक्सुअल हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए एक सेक्सुअल एजुकेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस, प्रैक्टिकल, अफोर्डेबल और सेफ सिस्टम की ज़रूरत है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट या एस्ट्रोलॉजी के जोडिक साइन पर छोड़ने की चीज़ नहीं है, ये एक सिस्टम नेसेसिटी है। स्क्रिप्ट राइटर कॉन्फेशन, द डार्क साइड ऑफ क्रिएशन। द नरेटर इज सिटिंग एट अ डेस्क विद अ पेन एंड द पेपर, राइटिंग इंटेंसली अंडर अ सिंगल लैम्प। कल जब मैं एक बड़ी स्क्रिप्ट राइटर बन जाऊंगी और कोई इंटरव्यू में मुझसे पूछेगा आपके अपने डार्क साइड में आप क्या करते थे, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं कोई सैंट थी, संत थी। मैं कहूँगी कि जब बच्चे टूटते हैं तो कोई अल्कोहल पीने लगता है, कोई सिगरेट में पन्हा लेता है, और मैंने मैंने स्टोरीज़ और रोमांटिक टीवी सीरियल्स में कंफर्ट ढूंढा। मैंने अपनी उन्हीं दबी हुई डिज़ायर, फियर और ऑब्जर्वेशन को अपनी स्क्रिप्ट का हिस्सा बनाया, क्योंकि अगर हम इन चीज़ों पर खुलकर बात नहीं करेंगे, चाहे वो हिंदी हो, पंजाबी हो, इंग्लिश हो, तो ये डार्क सीक्रेट्स हमारे घुटन बनकर रह जाएंगे। एंड इट इज़ अ टाइम टू राइट इट डाउन, रिसर्च इट एंड ब्रिंग इट टू आउट इन द लाइट। कीचड़ से प्रकाश तक, द रियलिटी ऑफ स्क्रीन, साइलेंस एंड सर्वाइवल। मल्टी लेयर स्क्रिप्ट सोशोलॉजिकल मोनोलॉग, हिंदी, पंजाबी एंड इंग्लिश सीमलेसली blended for a raw emotional truth. Unapologetic, vulnerable, analytic, and deep reflective. The mirror on screen versus the closed door. Scene open with a dim room, the light of television screen flicker on the wall, casting blue and white shadow. A voice speak over the background noise of late night serial. जो चीज़ें बंद कमरों में होती हैं वो आम जनता अपने दिल में दबाए रखती है, सोचती है कि बस वही अकेले हैं जो ऐसा सोच रहे हैं। आज वही टीवी पर खुलेआम दिखाई जा रही हैं। क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया या दंगल टीवी पर जो स्टोरीज आती हैं, लोग कहते हैं ये गलत मैसेज दे रही हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि इससे बच्चे बिगड़ रहे हैं। डायरेक्टोरियल नोट, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अगर बच्चों को ये सब स्क्रीन पर दिखता है तो वहाँ एक एज रिस्ट्रिक्शन या नॉट सेफ फॉर किड्स का ऑप्शन ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि एक बढ़ता हुआ टीनेजर उसके माइंडसेट ग्रोथ स्टेज पर होता है। उसे नहीं पता कि वो क्या देख रहा है, उसे क्या देखना है और क्या नहीं। जब वो ऐसी चीज़ें देखता है तो उसका दिमाग उलझ जाता है। द अनस्पोकन टैबू, क्रॉसिंग बाउंड्रीज बिहाइंड क्लोज डोर। द म्यूजिक शिफ्ट टू अ टेंस लो फ्रिक्वेंसी hum, the atmosphere becomes heavy. Let's talk about the raw painful reality that people hide. मान लीजिए एक ऐसी मिडिल क्लास फैमिली की बात जहाँ एक मेटर्नल अंकल और उनकी कज़न सिस्टर या सिबलिंग डायनामिक्स के बीच में बाउंड्रीज ब्लर होने लगती हैं, चैटिंग शुरू होने लगती है, न्यूड फोटोज शेयर होती हैं और अचानक ऐसी डिस्ट्रैक्शन पैदा होती है जो समाज की हर सीमा लांघ देती है। डीप रिफ्लेक्शन, अगर ऐसी बात किसी आम मिडिल क्लास घर में बाहर आ जाए तो क्या होगा? या तो कोई मरेगा या घर बर्बाद हो जाएगा। पर अगर मीडिया या क्राइम शोज़ इसे एपिसोड बना दें तो चैनल को टीआरपी मिल जाएगी, दंगल या क्राइम पेट्रोल को एक नया टॉपिक मिल जाएगा। पर क्या किसी ने ग्राउंड रियलिटी पर सोचा कि क्या वहाँ कोई एक्चुअल हीलिंग या सोल्यूशन मिलता है? नहीं, बस एक तमाशा बन जाता है और आम इंसान डर के साए में जीने लगता है। Faith, psychology, and the fear of counseling. The scene shift to visual of old religious scriptures, spiritual chant mixed with the images of pamphlets for a गुप्त रोग and local clinics. जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो इंसान कहाँ जाए? अगर हम भगवान श्री कृष्ण के श्लोक या सरस्वती माँ की बात करें तो उनके डीप अर्थ आम आदमी को समझ नहीं आते जब तक वो खुद से दलदल से ना गुजरा हो। और जब बात आती है काउंसलर के पास जाने की तो वो स्मॉल टाउन्स और पिंड के लोगों को क्या पता होता है, शहरों में बड़े बड़े पैम्पलेट्स, गुप्त रोग के बोर्ड और एक्सपेंसिव साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। पर एक अनपढ़ या मिडिल क्लास परिवार का व्यक्ति जब वहाँ जाता है तो उसे डर लगता है। उसे लगता है कि कोई उसका फ़ायदा उठा लेगा या उसकी वनरेबिलिटी को जज किया जाएगा। इंटरनल पेल एंड पर्सनल एक्सपोजर, अगर मैं अपनी खुद की बात करूं, जब मैं अंदर से टूट चुकी थी तो मेरा हार्ट ब्रेक हुआ था जब इनकम टैक्स या एग्ज़ाम के मार्क्स अच्छे नहीं आए थे। तो दिमाग कहाँ कहाँ भटकता है। इंसान रोमांटिक वीडियोज़ या ऐसी चीज़ों में कंफर्ट ढूंढने लगता है जिसे समाज गंदा कहता है। मैं पॉर्न की बात नहीं कर रही, मैं उस साइकोलॉजिकल वॉइड की बात कर रही हूँ जहाँ इंसान अकेला पड़ जाता है।
कीचड़ में उतरना, द कॉस्ट ऑफ अवेयरनेस, अ पावरफुल ग्राउंडिंग मोनोलॉग, द लाइटनिंग ब्राइटनेस टू अ शार्प रियलिस्टिक फाइट। लोग कहते हैं जो एक्टर्स ये सब रोल प्ले कर रहे हैं या जो क्रिएटर्स इस पर कंटेंट बना रहे हैं या वो गलत है, पर कोई ये क्यों नहीं देखता कि उन्हें खुद से मड में उतरना पड़ता है, तब जाकर दुनिया की आंखें खुलती हैं। एक्ट्रेसेस को, एक्टर को, राइटर्स को ऐसी डार्क रियलिटीज़ पर एक्टिंग करनी पड़ती है ताकि समाज को समझ आए कि घर के अंदर चल क्या रहा है। ये अवेयरनेस के लिए ज़रूरी है। कॉन्ट्रास्टिंग रियलिटीज़, एक तरफ वो स्टूडेंट्स हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल पढ़ रहे हैं, ब्लॉगिंग में बिजी हैं, इन्होंने ऐसी डार्क लाइफ देखी ही नहीं है, इनके पास वक्त ही नहीं है। पर दूसरी तरफ वो आम जनता जिनके नाम पर बड़े बड़े एक्टर्स और चैनल करोड़ों कमा रहे हैं और आम पब्लिक बस एक एंटरटेनमेंट की तरह देख कर छोड़ देती है, उन्हें असली अवेयरनेस नहीं मिलती। द स्क्रिप्ट राइटर कॉल टू एक्शन, जैसे पुराने समय में पीरियड्स के दौरान कपड़ा यूज़ करने की मजबूरी थी और अब प्रॉब्लम जब बढ़ी तो सैनिटरी पैड्स का इन्वेंशन हुआ, वैसे ही आज की डेट में ये साइकोलॉजिकल, इमोशनल और सेक्सुअल सप्रेशन एक बहुत बड़ा पीरियड टैबू बन चुका है जो छुपाया जा रहा है। इस पर एक ऐसी सॉलिड स्क्रिप्ट होनी चाहिए, सिर्फ एंटरटेनमेंट ना हो बल्कि एक रियल सॉल्यूशन दे। डर को मिटाने के लिए, गुप्त रोगों और मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने के लिए प्रोफेशनल और फियरलेस फ्रेम की ज़रूरत है, और यहाँ मेरी स्क्रिप्ट का मकसद होगा द गुमशुदा सोच और अज्ञात दर्द, एक रियल स्क्रिप्ट राइटर की पुकार। प्रोफेशनल स्क्रिप्ट फॉर्मेट, स्ट्रिक्ट हिंदी, नो मिक्सिंग, रॉ, साइकोलॉजिकल, एम्पैथेटिकली एनालिटिकल एंड डायरेक्ट। एक ऐसी लड़की का कमरा जो अकेली बैठी है, हाथ में एक डायरी और पेन है, दिमाग में चल रहे विचारों का बोझ उसके चेहरे पर साफ दिख रहा है। किसी एक्टर या मोटिवेशनल स्पीकर की तरह ज्ञान नहीं दे रही, बल्कि एक आम स्टूडेंट की तरह सच बोल रही है जो खुद इस दौर से गुजर रही है। यहाँ असली समस्या क्या है? असली समस्या ये है कि आजकल एस्ट्रोलॉजर, सोशल स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर और एक्टर अपना अपना टॉपिक ढूंढकर अपना अपना काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। पर मैं एक ऐसी स्टूडेंट हूँ जिसने ये सब अपनी आंखों से देखा है और आपस में महसूस भी किया है। वही दर्द जो स्क्रीन पर कोई एक्टर निभाता है और वही जो सच जो जिंदगियों में रियल में हो रहा है। कैमरा फोकस करता है एक डायरी के पन्ने पर जहाँ कुछ लाइन लिखी है, टीनेजर सेक्सुअल डिस्ट्रैक्शन, हार्ट ब्रेक और सिबलिंग साइकोलॉजिकल डिस्ट्रैक्शन डिसऑर्डर। जब एक टीनेजर का हार्ट ब्रेक होता है, जब उसकी ज़िंदगी में प्यार नहीं मिलता, तो वो उसका दिमाग कहाँ कहाँ भटकता है। मैं बात करूँगी सिबलिंग साइकोलॉजिकल डिस्ट्रैक्शन डिसऑर्डर की, जहाँ भाई बहन या कज़न डायनामिक्स के बीच बाउंड्रीज टूट जाती हैं, जहाँ चैटिंग होती है, न्यूड फोटो शेयर होती हैं, एक तरफ लड़की दुखी है, दूसरी तरफ वो लड़का दुखी है, क्योंकि उन्हें पर्सनल रिलेशन में कभी ऐसी इमोशनल सिक्योरिटी नहीं मिली। पर इसका मतलब ये तो नहीं इंसान अपनी सारी सीमाएं, लिमिट्स क्रॉस कर दे। कैमरा थोड़ा रुकता है, गहरी सांस लेती हुई आवाज़ आती है, ये सब आगे निकल जाता है, तब दिमाग कंट्रोल से बाहर होने लगता है। क्राइम पेट्रोल और दंगल पर हम देखते हैं कि कैसे लोग भाग कर शादी कर लेते हैं या तबाही मचा जाते हैं। मेरा दिमाग इतना आगे चला जाता है कि मैं खुद डर जाती हूँ। मैं सोचती हूँ एक आम काउंसलर कैसे सोचेगा, एक डॉक्टर इसको कैसे समझेगा, एक साइकोलॉजिस्ट इसको कैसे ट्रीट करेगा। द टैबू ऑफ हीलिंग, कहाँ जाएं, कैसे, किसे बताएं। पुराने शहरों की दीवारें जहाँ गुप्त रोग और सेक्सोलॉजिस्ट के पुराने गंदे पैम्पलेट चिपके होते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है, इस चीज़ को छुपाया कैसे जाता है? एक आम इंसान या स्टूडेंट डॉक्टर के पास जाकर अपनी ये बात कैसे करेगा? जैसे सड़क पर गुप्त रोग के बड़े बड़े पोस्टर छपे होते हैं, क्या वैसे ही साइकोलॉजिकल और सेक्सुअल हेल्थ के लिए कोई साफ भरोसेमंद जगह है? क्या इस पर कोई रिसर्च बुक है? क्या इसको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? जब आप अपने आसपास ये पैटर्न रोज़ देख रहे हो और कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो इंसान अंदर से मरने लगता है। अगर कोई इंसान अनपढ़ या मिडिल क्लास फैमिली से है, तो उसके घर में ऐसी बातों की वजह से या तो मर्डर हो जाएगा या पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। तो टीवी सीरियल और क्राइम शोज़ को तो ये एक नया टॉपिक मिल जाता है, पर रियलिटी में किसी का घर ठीक नहीं होता, बस डर और बढ़ जाता है। द डार्क साइड ऑफ एंटरटेनमेंट एंड द पावर ऑफ स्क्रिप्ट, एक और सच्चाई सुनिए। टीवी के ऊपर एक ऐसी वीडियोस या सीन बनाए जाते हैं जो देखने में तो लगता है कि अवेयरनेस है, पर आम जनता इसका गलत मतलब निकाल लेती है। लोग इसे एक एंटरटेनमेंट की तरह देखते हैं, मज़े लेते हैं और सोचते हैं कि सब ऐसे ही कर रहे हैं।
मेरा दिमाग भी कभी कभी यही सोच कर गंदा हो जाता है कि क्या ये लोग सिर्फ मज़े के लिए सब दिखा रहे हैं। फिर एक पक्का इरादा चेहरे पर आता है, और मेरा मकसद साफ है, जब तक मेरी ये स्क्रिप्ट उन बड़े बड़े क्रिएटर्स, डायरेक्टर और समाज तक नहीं पहुंचेगी, तब तक उन्हें ये पता ही नहीं चलेगा कि आम स्टूडेंट की आंखों के सामने क्या चल रहा है। मुझे पता है कि मुझे सब समझ आ रहा है, पर सबसे पहले मेरी फैमिली को, इस समाज को और इस सिस्टम को ये समझाने की ज़रूरत है। ये सिर्फ एक स्क्रिप्ट नहीं है, ये एक ऐसी आवाज़ है जिसे दबाया जा रहा है, और मैं एक शुद्ध हिंदी में बिना किसी डर के एक प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटर की तरह दुनिया के सामने रखूँगी। क्योंकि अगर आज इस पर बात नहीं की गई तो कल ये आग हर घर तक पहुँच जाएगी।